from the viewpoint of education, from the viewpoint of taxation. The most important, as any topic of the accountancy, this topic also can be useful in your future life, and the topic you can clearly see on screen, that is GST. The name itself is a famous name, and we are using the word GST in our routine life. So many headlines in the newspapers, so many articles on the online sections you can find out to get the knowledge of GST. But as a student, what are the basics of the GST? And that we have to study in this chapter. So here is your GST, one nation, one tax. Before starting any discussion on GST, first of all, we have to understand the tax structure of the entire nation. So let's see what is our tax structure. So when we are talking about Republic of India, we have dual taxation structure. Whether on one hand we have income tax, or say direct taxes, or say what? Direct taxes. On the other hand, we have indirect taxes. So what is the basic difference between this direct taxes and indirect taxes? So when I am talking about the direct tax, when I am talking about direct tax, we take it into the account things. What kind of things we are taking in the account? Taxpayer to direct government means when any assessee pay taxation direct to the government without any mediator, when a citizen of the nation direct pays tax as his responsibility towards the government on earning or their own wealth, is known as what? Direct taxes. For an example, here we have indirect tax called income tax. Means whatever income we earn, we have to pay tax on that particular income. Not only income tax is the direct tax, number of taxes are there which can be categorized under the head of direct taxes, like wealth tax, property tax, capital gain tax, etc., etc. But income tax is a normal tax what we can take into the consideration as an example. जब हम स्टडी करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनकम टैक्स एक सिंपल सा टैक्स है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अर्निंग के ऊपर, बिकॉज आप सब सुनते हो घर पे भी कि भाई इनकम टैक्स हमें पे करना है या रिटर्न फाइल करना है, तो ऐसे वर्ड्स आप घर पे सुनते हो। तो इनकम टैक्स आपके लिए बहुत इजी है समझने में। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, यानी आपके घर पे कुछ टैक्सेस आते हैं जो आप सीधे म्यूनसिपलिटी में जाके पे आउट करते हो, तो उसको भी आप डायरेक्ट टैक्सेस बोल सकते हो, क्योंकि वो भी आप कहीं ना कहीं लोकल अथॉरिटी को डायरेक्टली पे कर रहे हो। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक इनडायरेक्ट टैक्सेस। लुक एट citizen and government both are connected via bridge of retailer or manufacturer. What? Taxpayer, you can say citizen, or you can say assessee, and government both are connected to each other via the bridge of manufacturer or retailer. So how this could happen? ये कैसे हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। तो हम मार्केट में
जब भी कोई चीज परचेज करने जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, आप लिवाइस का जीन्स लेने चले गए, आप बालाजी की वेफर लेने चले गए, आप पार्ले जी का बिस्किट लेने चले गए, वी हैव अ स्मॉल मेंशन MRP details on particular product, maximum retail price, and this MRP has another notification that inclusive of all taxes. Means which kind of taxes? Indirect taxes. So we are paying these taxes to retailer or say manufacturer, and on behalf of us, manufacturer or retailer deposit that particular taxes to government. So we are indirectly connected for such kind of taxes. Those are called as what? Indirect taxes. And the chapter goods and service tax is one kind of indirect tax. Is what? One kind of indirect tax. So let's study further that what is this GST and how this GST comes into the force for Indian Constitution. So contents of the chapter is journey of GST, definition, indirect tax structure, types of GST, outside of GST, and last but not least GST Council. So first of all, we have a journey of GST. So what is the journey of GST and how the GST has been introduced in the Indian Constitution, especially in the taxation policy. So first time ever when the government thought about the GST, and that was the year 2006. 2006, where first announcement of GST made by the Union Finance Minister in 2006-7 that it would introduced from 1st April 2010. 2006 में अनाउंसमेंट हुआ, कब इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था? 2010 में। 2009 में इसका फर्स्ट पेपर रिलीज किया गया जीएसटी रिलेटेड। 2010 में अमेंडमेंट 150 कॉन्स्टिट्यूशन बिल को लोकसभा में पेश किया गया। हाउएवर some of the technical or constitutional matters and some of the electoral process, ये बिल किन्हीं वजहों से पास नहीं हो पाया। उसके बाद उसको रीशेड्यूल करके 2014 में वापस से लोकसभा में लाया गया, जो 122nd अमेंडमेंट था। इस बिल को पास कराया गया 2014 में। 2016 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। 2017 में जीएसटी काउंसिल ने एक रूल बुक डिसाइड करी जो सभी स्टेट को अप्लाई करनी थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जितने भी स्टेट्स या यूटीज थे उनको ये अप्लाई करनी थी। उसके बाद ये जर्नी चली और ये चलती रही। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लॉन्च किया गया। 8 जुलाई को डिफरेंट बिल्स जो है वो पास किए गए हैं, जिसमें एसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी जो हम आगे देखेंगे लागू किए गए। और उसके बाद आज तक ये जर्नी चालू है जीएसटी की। इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं ओरिजिनल बिल के बाद, और ये बदलाव इन फ्यूचर में भी आते रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई एक्ट पास होता है तो उसमें बदलाव की आवश्यकता रहती है। The next point we are going to discuss is definition of the GST. So let's see the definition of the GST. Definition of the GST. GST law from a constitutional perspective. ये constitutional perspective के हिसाब से GST की definition है, जो आर्टिकल 366(12)(a) का एक हिस्सा है। Goods and services tax means any tax on supply of goods or services or both.
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, यानी वेदर वी आर कंज्यूमिंग फिजिकल मटेरियल like mobiles, cell phones, computers, FMCG products like shampoos or soap cakes, or otherwise we are utilizing services like education, medical, infrastructural facilities, whatever services or goods we are utilizing, GST is applicable on both of them. Definitions में goods की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, इंक्लूड्स ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स, जो कुछ भी अवेलेबल है इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल, ये डेफिनेशन आर्टिकल 366 में आपको मिलेगी। सर्विसेज के लिए एनीथिंग अदर देन गुड्स, ये भी आपको 366 में इसका डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा। इफ यू वांट टू नो द डिटेल नॉलेज ऑफ दिस आर्टिकल्स, you can contact us and we will provide you the live lectures on these topics. States की भी एक definition है, जो नीचे एक लाइन है बहुत ही important है, goods and service tax law while having unique principle has significant element of prior central and state laws. ये central और state दोनों को जोड़ता है, ये दोनों को combine करता है, और हमने जीएसटी का जो बेस है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी में से उसके कुछ हिस्से हमने लिए हैं, उसी तरह हमने जो जीएसटी या वेट का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे कंट्री से इम्प्रेस्ड होके हमने कॉपी नहीं किया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बेस लिया है, उनके जीएसटी प्रोसेस को बेस लिया है, और उस प्रोसेस के तहत हमने हमारा जीएसटी क्या किया है, अप्लाई किया है। तो ये आपकी जीएसटी की डेफिनेशन थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जीएसटी से पहले क्या था? मैं जीएसटी तो 2006 में प्रपोज हुआ, 2010 में वो पास नहीं हो गया, फिर उसको वापस 2014 में लोकसभा में लाया गया, 2017 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, 2017 से उसको लागू कर दिया गया। तो उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे हुआ करते थे? When we are talking about the indirect taxes before GST, GST के आने से पहले इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिविजुअली एक्ट कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिविजुअली एक्ट कर रही थी। जो गुड्स या सर्विसेज कंट्री में अवेलेबल थे, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन टैक्स्ड differently according to state and central government. If we are talking about the central government, and central government has excises, medicinal and toilet preparation, duties of customs, some kind of service taxes, and surcharges and cesses. Along with this, a different kind of additional taxes that government can be claimed before GST has been applied. When we are talking about the state government has its own taxation structure. The first they have implemented as a weight or sales tax. Weight का full form value added tax, central sales tax, purchase tax, entertainment tax, luxury entry tax, tax on lottery, betting, surcharges and cesses. Different kind of taxes by state government and central government. So absence of uniformity was there. Along with this, all of the state of the India had adopted the different kind of taxation policies for indirect taxes. If you are moving to Rajasthan, they have different kind of taxation policy. If you are moving to Maharashtra, they have different kind of policy. When a trader from Maharashtra was performing his business in different state of India like Gujarat, Rajasthan or Delhi,
trader had to pay different kind of taxes to those government, or the purchaser had to pay different kind of taxes to the different kind of governments, even state or central. So to bring uniformity, to bring all the taxpayers, means all of the assessees of this nation under one roof, the implementation of goods and service tax has been applied, which gives power to both central government as well as state government, which brings the slogan one nation one tax. मतलब आज से 2017 से पहले अगर आप महाराष्ट्र में गए तो वहाँ पे पानी की बोतल पे 2 रुपये टैक्स था, गुजरात में 50 पैसा था, या राजस्थान में 10 पैसा था, या हरियाणा में 35 पैसा था। आज आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाओगे, द सेम टैक्स स्ट्रक्चर यू हैव टू पे। पानी की बोतल पे 1 रुपया, यानी 1 रुपया ही टैक्स आपको पे करना है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टैक्सेशन, व्हाट इज ब्रॉट by whom? By GST Council, that is Goods and Service Tax. तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की, जीएसटी के हिस्ट्री की, जीएसटी के डेफिनेशन की, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो अब बात करते हैं कुछ जीएसटी के टाइप्स की, हम बात करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये जो भी स्ट्रक्चर था सेंट्रल का या स्टेट का या लोकल अथॉरिटीज का, हमने इस स्ट्रक्चर को यहां से हटा दिया, यानी सेंट्रल की इनकम चली गई, स्टेट की इनकम चली गई। तो अब सेंट्रल को इनकम कैसे होगी और स्टेट को इनकम कैसे होगी? तो जीएसटी के बेसिकली 3 पोर्शन बनाए गए, सीजीएसटी, SGST and IGST. CGST means taxation that is collected by the central government. SGST and UGST means taxation collected by state government or union territories. And last but not the least, IGST called integrated GST. Now, how these all are performed? इनका परफॉर्मेंस क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। लुक एट सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, कलेक्शन। मैं आपको बोलूं कि किसी प्रोडक्ट पे 9% जीएसटी है, कितने परसेंट जीएसटी है? 9%। यानी कि मैंने एक पैकेट परचेज किया है 100 रुपए का, उसके ऊपर मैंने 9 रुपए जीएसटी भरा, तो ये जीएसटी किसके पास जाएगा? ये 9 रुपए स्टेट के पास जाएंगे या ये 9 रुपए सेंटर के पास जाएंगे? तो ये जो 9 रुपीस परचेज हुए हैं उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 4.5, 4.5, यानी 4.5 चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 4.5 चला जाएगा एसजीएसटी के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब ये कौन कलेक्ट करेगा? इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किस तरीके से हुई है, उसका कलेक्शन सेंटर कौन सा है, वो कौन से वार्ड में होती है। इट्स अ ह्यूज मैटर ऑफ स्टडी। इफ यू आर स्टडी फॉर द फर्दर professional exams like CA and CS, you will be studied there, otherwise you can contact us for detailed study. The most important point, IGST, integrated GST. Integrated GST क्या होता है? जब गुजरात का कोई ट्रेडर गुजरात के दूसरे ट्रेडर से बिजनेस करता है, या गुजरात का कोई मैन्युफैक्चरर गुजरात में ही अपना गुड्स बेचता है, यानी मैं आपको समझाऊं कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक फैक्ट्री जो बड़ौदा में है,
कहाँ पर है, बड़ौदा में है, और यहाँ पे कुछ गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, कुछ गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो बड़ौदा का मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट्स को दो जगह पे सप्लाई करता है। एक इसका सप्लाई बॉम्बे होता है और एक इसका सप्लाई पालनपुर होता है। ओके, सो क्या होगा कि बड़ौदा का जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है वो जब पालनपुर को सप्लाई करता है, यहां पे जो जीएसटी होगा वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर बड़ौदा का कोई मैन्युफैक्चरर बॉम्बे गुड्स सप्लाई करता है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा। क्या हुआ, इंटरस्टेट। तो अब ये जो इंटरस्टेट कलेक्शन है वो कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसमें से जिस स्टेट का जितना हिस्सा है वो उसको दिया जाएगा और गवर्नमेंट अपना हिस्सा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा अपने पास रखेगी। यहाँ पे कलेक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ टैक्स को कलेक्ट करना, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, चाहे जीएसटी एसजीएसटी हो, हर एक जीएसटी के दो हिस्से होंगे, जो का एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट पे जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स थे सीजीएसटी और एसजीएसटी को लेके। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम जीएसटी के रेट्स के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं, जिसके स्लैब्स 5%, 12%, 18% और 28% तक है। ये स्लैब्स में बदलाव आता है, इसमें डिफरेंस आता है। कुछ प्रोडक्ट्स स्लैब से निकल के अपर स्लैब में चली जाती है, लोअर स्लैब में भी आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन बाय द कोर कमिटी ऑफ द जीएसटी काउंसिल। देखते हैं, अगर हम आज की तारीख में बात करें तो 0% टैक्स ऑन रो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, 0.25% taxation on some of the gems and polished stones, 5% taxation on processed foods like sugar or packaging material or edible oils, 12% taxation on basic goods like computers, 18% on FMCG products like soaps and hair oils, and most important 28% on luxury items like car, cell phones, cameras, etc. So ये रिसेंट आपके टैक्सेशन स्लैब्स है अकॉर्डिंग टू जीएसटी। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है जो आपको सर्च करने से मिल जाएगी, अदरवाइज यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल ऑल्सो। आप जीएसटी के पोर्टल पे जाके उसको देख सकते हो। कुछ चीजें जिसपे अभी तक जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है, वो चीजें क्या है? सबसे पहला अल्कोहल, पेट्रोल, टोबैको प्रोडक्ट्स एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स। यहां पे आज भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी से पहले एप्लीकेबल थे, जैसे कि वेट था, सेल टैक्स था, वो अभी भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अल्कोहल का जो भी टैक्स कलेक्शन है उसका पावर स्टेट के पास जाता है। टोबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्शन की बात करें तो उसका जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और लास्ट जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के पास अभी भी जाता है। इसके ऊपर जीएसटी अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, होप इन द फ्यूचर ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी को कंट्रोल कौन करता है। तो कोई भी लो या कोई भी ऑर्डर हो उसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी परफॉर्म की जाती है। एक कमेटी को पिक्चर में लाया जाता है और वो कमेटी है जीएसटी काउंसिल। और वो कमेटी क्या है? जीएसटी काउंसिल है। तो हम जीएसटी काउंसिल को देखते हैं। जीएसटी काउंसिल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 279 के तहत बनती है। इसके जो चेयरपर्सन है
वो कंट्री के फाइनेंशियल मिनिस्टर रहते हैं। अगर आज की बात करूँ, जब ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ, तो निर्मला सीतारामन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो इस काउंसिल के चेयरपर्सन है,